حشر کا سما ہے، اور وہاں ایک صاحب مل گئے جن سے انہوں نے قرض لیا ہوا تھا۔ وہ قرض کی واپسی کا مطالبہ کرنے لگے اور سینے پہ چڑھ کر بیٹھ گئے کہ آج میں تم سے اپنا قرض واپس لوں گا۔ اب دنیا کے سکے وہاں کہاں چلتے ہیں؟ اور صاحب نے معذوری ظاہر کی کہ میرے پاس تو یہاں کوئی سکہ نہیں، کوئی کرنسی نہیں ہے، میں تمہارا قرض کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ لیکن وہ صاحب بضد تھے اور سینے پہ بیٹھے رہے کہ میں تو اپنا قرض وصول کروں گا، ورنہ تم اپنی نیکیاں مجھے دو۔ وہ ولی اللہ وہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ جب وہ پہنچے تو انہوں نے پوچھا کہ یہ تم میرے دوست کے سینے پہ کیوں چڑھے ہوئے ہو؟ یہ تو میرے دوست ہیں، تمہارا ان سے کیا مطالبہ ہے؟ ان صاحب نے بتایا کہ میں اپنا قرض وصول کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ صاحب ولی اللہ کے ولی کہنے لگے کہ میرے پاس یہ سونے کے پہاڑ جیسے اعمال ہیں، تمہیں جتنا چاہیے ان میں سے لے لو اور میرے دوست کو چھوڑ دو۔ وہ صاحب آنکھ کھلنے پر بہت شرمندہ ہوئے اور واپس اللہ کے ولی کے پاس آئے اور کہا کہ میں نے آپ کے بارے میں غلط گمان کیا، مجھے معاف کر دیجئے۔ اللہ کے ولی نے فرمایا کہ میں اپنے لیے کچھ نہیں کرتا، جو کچھ بھی میں کرتا ہوں در حقیقت تو اپنے دوستوں کے لیے کرتا ہوں تاکہ روز محشر ان کی گردن چھڑا سکوں۔ شیخ وہ ہے جو گناہوں کے بوجھ سے خالی ہے۔ خدا کے اس بندے سے مراد در حقیقت سفید داڑھی والا نہیں ہے۔ اگر وہ جوان بھی ہے لیکن اگر اس کے اندر صفائی ہے تو وہ شیخ کہلانے کا مستحق ہے۔ اگر وجود پر ایک بھی نفسانی بال باقی ہے تو وہ درجہ حاصل نہیں ہو سکتا، وہ شخص درجہ کمال کو نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پالنے میں بھی بزرگی کا اعلان کر رہے ہیں، وہ پالنے میں بھی شیخ ہیں۔ محشر میں در حقیقت اللہ کا کوئی دوست ہی ہوگا جو مدد کرے گا، بشرطے کہ ان سے نسبت قائم کی جائے۔ شیخ وہی ہے جو اپنی مرضی کو اللہ کے تابع کر دے، اور اگر خودی قائم ہے تو نہ وہ پیر ہے اور نہ ہی خدا کا خاص بندہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر دو جبڑوں اور دو رانوں کے درمیان کی ضمانت دو گے تو میں ایسے شخص کو جنت کی ضمانت دوں گا۔ بات صرف زبان کی نہیں ہے، در حقیقت اگر نفس نے چٹخارے دار کھانوں پہ بھی لگایا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جب دو جبڑوں کے درمیان زبان کنٹرول میں نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز میں میانہ روی ہونی چاہیے۔ عارف وہ شخص ہوتا ہے جو ہر وقت شاہ کے تب کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن زاہد ایک مہینے میں ایک دن کا سفر طے کرتا ہے۔ سفر زہد سے شروع ہوتا ہے لیکن پھر عرفان کی منزل حاصل ہوتی ہے، اور عارف جنت اور جہنم کے بکھیڑوں سے نکل جاتا ہے۔ وہ اللہ کے لیے محنت کرتا ہے اور اللہ ہی کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کی رضا ایسے نظر آتی ہے کہ عارف مخلوق کی خدمت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ جوانی کی توبہ در حقیقت پیغمبروں کی صف میں کھڑا کر دیتی ہے۔ جب میں ختم ہو جاتی ہے تو وہ شخص شیخ اور بزرگ کہلاتا ہے۔ ظاہری نظر نہر کے اوپر گھاس پھوس کو دیکھتی ہے، جبکہ اللہ کے دوست گہرائی میں نہر کے پانی کے بہنے کو دیکھ لیتے ہیں، اور جب اللہ کی کسی پر مہربانی ہو تو خس و خاشاک کو نہیں بلکہ نہر کی گہرائی کو دیکھتا ہے۔ اللہ ان کی بندھی ہوئی عقل کو کھول دیتا ہے، جس کے نتیجے میں عقل سے اگلی منزل عرفان کے حصے میں آتی ہے۔ ایک صاحب ایک نابینا شخص کے یہاں مہمان بن کر آئے تو وہاں دیکھا کتاب میں قرآن رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے پوچھا نہیں، انتظار کیا، صبر کیا۔ اجلت پسندی در حقیقت شیطان کی طرف سے ہے۔ رات میں دیکھا کہ وہ بزرگ قرآن کو پڑھ رہے ہیں، بڑی حیرت ہوئی، پوچھنے لگے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ بزرگ کہنے لگے کہ میں
अल्लाह ताला से दुआ की कि मुझे कुरान से मोहब्बत है, जब मैं कुरान लेकर बैठूं तो मुझे मेरी आंखें लौटा दिया करें ताकि मैं कुरान पढ़ लिया करूं। तहज्जुद का वक्त ख़ास होता है और जो इसको दरियाफ़्त कर लेता है वो अल्लाह ताला से जुड़ जाता है। लुक़मान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हिकमत से नवाजा। एक दफ़ा वो दाऊद अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ लाए। अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम को ऐसा लहन दिया था कि जब वो ज़ुबूर की तिलावत करते तो चरिंद परिंद सब जमा हो जाते, इसीलिए लहन दाऊदी मशहूर है। जब लुक़मान अलैहिस्सलाम पहुँचे तो दाऊद अलैहिस्सलाम ज़रह बना रहे थे। उन्होंने जब ज़रह मुकम्मल कर ली तो हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सब्र इससे बड़ी ज़रह है, जो सब्र की ज़रह पहन लेता है वो तमाम दुखों और परेशानियों से महफूज हो जाता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ हैं। अल्लाह ताला ने दर हकीकत डिफ्रेंशिएट किया है कि जो लोग सब्र करते हैं वो खसारे में नहीं हैं। कीमिया जौहर को कहते हैं। हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इंसानों ने सब्र से बड़ा जौहर नहीं देखा। बग़ैर मंझाई के आईना भी नहीं बनता, और जो सब्र का जौहर सीख लेगा और अल्लाह की मर्ज़ी और रज़ा को मुक़द्दम समझते हुए सब्र को इख्तियार करेगा, उसका मुकाम व मर्तबा अलग है। अरवाह में मौलाना रहमतुल्लाह अलैह की रूह ऐसी रूह है जिससे जब मदद व इस्तिआनत तलब की जाए तो फ़ौरन मदद को आती है। दर हकीकत कौन सी मिट्टी ऐसी है जो रूह को ढाँप सकती है? रूह को कोई मिट्टी नहीं ढाँप सकती और रूह हमेशा ज़िंदा रहती है। दुआ का सलीका भी बुज़ुर्ग सिखाते हैं। यकीन की कमी की वजह से हमने अपने दायरे छोटे कर लिए हैं और अपनी फ़िक्र को महदूद कर लिया है, जबकि अल्लाह दर हकीकत हर शय पर कादिर है। अल्लाह चाहता है कि हम इसको पहचानने का हक़ अदा करें। हाज़रीन महफ़िल, ये था पिछले हफ्ते का कुछ खुलासा जो मैं आपके सामने पेश करने की सादत हासिल कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आज के फ़ौरन बाद दुआ की मंजिल में मौला ने रहमत का नज़ूल हुआ और वहाँ की महफिल को मुख्तसर करके हम यहाँ आकर बैठे और गुज़िश्ता नशिस्त में जो बयान किया गया था हमारे नायब जनाब आसिफ कामरान जकीर साहब को दस के तहरीर में लाते हैं। ख्याल ये है कि मुस्तक़बिल तहरीर में इंशाअल्लाह इन तमाम मज़ामीन को इसी अंदाज में जो उन्होंने अख्तियार किया है तो किताबी शक्ल दी जाएगी। कि मसनद शरीफ का ये अंदाज इंतहाई सादगी से बयान करने का जो मैं बयान करता हूँ उसका ये जो लिखते से हैं और खुदाम पेश करते हैं, यही इस सफ़र को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए बहुत अहम है। हर हफ्ते ये नौजवान इंतहाई यकसुई और खुशो के साथ सुनते हैं, उसको फिर अपनी तहरीर में लाकर अगली नशिस्त में बयान से पहले पेश करते हैं। ये एक अच्छी कोशिश है, ये भी कर रहे हैं और हमारे दीगर अहबाब भी कर रहे हैं। ये हमारे लिए इत्मीनान क़ल्ब की बात है कि मसलन शरीफ के फ़रोग़ के हवाले से, तालीमात मौलाना के फ़रोग़ के हवाले से किताबी से कोशिशें खानख़वाह में की जा रही हैं। हम अल्लाह की बारगाह में दर दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी कोशिशों को कबूल करे और हमारे नौजवान साथियों में वो रौनक और वो कैफियत पैदा हो जाए जो ताल्लुक़ बिल्लाह की कैफियत कहलाती है, अल्लाह से क़ुर्बत की कैफियत कहलाती है। तो आज के नसीब में हमारा बयान हमने मौकूफ़ कर दिया। हमारे कुछ अहबाब तशरीफ़ लाए हैं और एक अमूमी ज़ाब्ता बनाते हुए क्या ही अच्छा हो कि आज नशिस्त को सवाल व जवाब का सेशन बना दिया गया। क्या कहना है, कुछ पूछना है वो पूछ लिया जाए, मसनी के हवाले से, मारूम के हवाले से, और इंशाअल्लाह याद जिंदा सोबत बाकी तो फिर अगली नशिस्त में इसी तरह से फिर जो है वो बयान किया जाएगा। तो अगर कोई भी सवाल मसनी शरीफ के हवाले से, मौलाना के हवाले से, हमारे मिशन के हवाले से किसी के जहन में है तो सवाल करें, इंशाअल्लाह काफ़ी जवाब दिया जाएगा। और हमारे इस मिशन से जुड़ जाने के नतीजे में हमारा यकीन कामिल है कि अल्लाह से ताल्लुक़ के नतीजे में
وہ راستہ نظر آتا ہے جو ہم ہر نماز میں، ہر ہی نماز میں واجب ہے سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اب سیدھا راستہ کون سا ہے؟ سیدھا راستہ انعام یافتہ صراط الذین انعمت علیہم، جس پر انہیں انعام کیا وہ راستہ دکھا۔ یہ مہینہ ذی الحج کا آنے والا ہے، خلیل حق علیہ السلام کی ذات مبارک جو انعام یافتہ لوگوں کے سر، اللہ کی مخلوق میں اور انبیاء میں بھی آپ کا وہاں مرتبہ ہے کہ انعام یافتہ جو گروہ ہے اس کے سرفیل جو ہے حضرت ابراہیم خلیل حق، وہ کر کے دکھایا جو انسانی فکر سے بعید ہے۔ آپ نے بھول جانا، بیٹے کو جو ہے وہ چھری کے نیچے دے دینا، اہلیہ محترمہ کو صاحبزادے کو جا کے مکہ مکرمہ کی وادی ذی زریر میں چھوڑ دینا، یہ انہی سے ہو سکے گا جنہیں اللہ نے خصوصی انعام و اکرام سے نوازا ہے۔ جب یہ ایسا عمل کر کے دکھایا گیا، قرآن میں نظر المضامین کو رکھا گیا، اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم سورہ فاتحہ کی اس دعا کو صراط الذین انعمت علیہم کی معنویت کو سمجھیں اور انعام یافتہ لوگوں کے فوج میں نکل جائیں۔ ہم دنیاوی مال و متاع اور کاروبار کو پھیلانے کے لیے صبح سے لے کے شام سے کتنی دوڑ بھاگ کرتے ہیں، کتنی دوڑ بھاگ کرتے ہیں۔ ان صاحب سے ملنا ہے، ان سے آڈر دینا ہے، اور ان صاحب کو ڈلیوری پہنچانی ہے، وہاں سے چیک لینا ہے، جس میں ہمارا کتنا وقت 24 گھنٹے میں ہم اسپیئر کرتے ہیں خدا کی رضا کے لیے، اہل اللہ کی تلاش میں کرتے ہیں، کر پاتے ہیں؟ نہیں کر پاتے۔ آج تو یہ شعور بھی نہیں ہے، وہ تو کہتے ہیں جی وہ اہم ہے بچے پالنے ہیں اور یہ پھر کر لیں گے، سفیدی آ جائے گی تو کر لیں گے۔ ابھی آپ کامران فرما رہے تھے کہ سفید داڑھی بزرگی کی علامت نہیں ہے۔ اگر کوئی نوجوان بھی ہے اور اندر سے مصفہ و مجلہ ہے، اس کا دل صاف ہے، اپنے رب سے تعلق میں ہے، تو وہ بزرگ ہے۔ پیمانہ جو ہے بزرگی سفید بالوں کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ بزرگی جو ہے اللہ سے تعلق کے حوالے سے ہے۔ ولی اللہ وہی ہے جس نے اپنی رب اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو راہ خدا میں لوگ محنت کرتے ہیں، نہ آپ جنت کی محبت میں کرتے ہیں، نہ جہنم کے خوف سے کرتے ہیں، وہ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اچھا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہتے ہیں تو انعام کیا ملے گا؟ اور وہ فرماتے ہیں کہ اس کو دو طرف سے انعام ملے گا۔ ایک تو وہ مخلوق ہے خدا کی جو خدمت کر رہا ہے، وہ بھی اللہ سے انعام دے گا، لوگوں سے کچھ نہیں ملے گا۔ وہ محنت جو ہے اس کی ہے، اس کی جو پیمنٹ ہے یا اس کا جو محنتانہ ہے، وہ فرماتے ہیں مخلوق کی جانب سے بھی خدا اس کو نوازے گا اور اپنی جانب سے، یعنی ایک کام کے اس کا دو محنتانہ، کام ایک ہے اور اس کا محنتانہ کیا ہے؟ دو طرح کا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس کا محنتانہ پھر کیا ہے؟ اور فرماتے ہیں کہ مومن اللہ کے دیدار سے کم پر راضی نہیں ہوتا۔ محنتانہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے دیدار کی طلب کرے گا اور ساری محنت اس کے دیدار کے لیے کرے گا کہ اس سے ملاقات ہو جائے، قطرہ جو ہے سمندر میں مل جائے۔ گھروں میں بالٹی میں پانی ہوتا ہے، لوٹے میں پانی ہوتا ہے، یہ ایک لوٹا یہ ایک بالٹی کہلاتا ہے۔ اب اس کو لے جا کے اگر ہم کلیکٹر میں ڈال دیں یا نیٹی کے نیچے ڈال دیں، سمندر میں یا کماڑی میں ڈال دیں، اب وہ لوٹا نہیں ہے بلکہ اب وہ سمندر ہے، جس نے جتنی وسعت اختیار کی فکری اعتبار سے اس کے راستے اتنے ہی کھل جاتے ہیں۔ اپنے رب سے تعلق کے حوالے سے، اپنے پیدا کرنے والے کو پہچاننے کے حوالے سے، یہ اہل اللہ کا فریضہ ہے، ان کا منصب یہ ہے کہ مخلوق خدا کو جہنم کے خطابوں سے چھڑا کر اللہ سے قریب کر دے گا فریضہ انجام دے گا۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی محفلیں ہیں تو چھوٹا نہ دیکھا جائے، اگر ہم جینیٹک کوڈ میں جینیاتی طور پر بہت سی ایسی برائیاں ہیں جو نسل در نسل لے کر چل رہے ہیں۔ اب کسی فقیر کے ساتھ بیٹھے، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سالہ طاعت بیریا، کسی اللہ کے دوست کے ساتھ چند لمحات جو گزرتے ہیں وہ مولانا فرماتے ہیں سینکڑوں سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے، کیونکہ اس کو وہاں سے وہ روشنی ملتی ہے جو اس کی اپنی عبادتوں کے نتیجے میں نہیں پیدا ہوتی۔ وہاں جو بھائی کوفتہ کے گزر دیا، جو سوئے ہوئے وہ کسی کو کیا اٹھائیں گے؟ جو جاگے ہوئے ہیں وہ اٹھائیں گے۔ تو جاگے ہوئے کی تلاش ہم اپنے روزگار اور معاملات کو چلانے کے لیے اتنی مشقت اٹھاتے ہیں، تو جاگے ہوئے لوگوں سے ملنے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں؟
नहीं कर पाते। अगर कैलकुलेट किया जाए 24 घंटे में तो पता चलता है कि हम मिनट के हिसाब से जो रिजल्ट डालते हैं। भाई 40-50 साल हो गए, नमाज़ें अल्हम्दुलिल्लाह कायम हैं, और वो फरमाते हैं कि हर जानदार का परिंद का बच्चा जो है वो 21 दिन में और 30 दिन में, और निकल आता है 40 दिन में, बच्चा का बच्चा 40 दिन में, 30 दिन में, मोर का बच्चा 30 दिन में, 40 दिन में, कबूतर का बच्चा 21 दिन में निकल आता है। अंडे में से तहरीक होती है और बच्चा बरामद हो जाता है, और तुम्हारी नमाज़ों को पढ़ते हुए तुम्हें 30 साल हो गए, मगर अभी तक कुछ भी जाएगी ना, तुम में वज़ूगी ज़ाहिर हुई, ना तुम में इस्तक़ामत ज़ाहिर हुई, ना खुदा से ताल्लुक़ की कैफियत पैदा हुई, ना तुम्हारी ज़बान में शीरनी पैदा हुई, ना अपने खुदा को तब्दील के मामलात को बेहतर करने के लिए तुम्हारा कोई, क्योंकि उसमें जो सबसे अहम फैक्टर है वो ये है यकसुई के बगैर है सारा। हम तो इतनी भाग दौड़ करते हैं और कुछ मामला अदा करके फारिग हो जाते हैं, तो हर चीज़ में तो हमें रिजल्ट चाहिए होता है शाम में, जो ये मेहनत की है तो ये काबिल है। अब ये जो मेहनत हम कर रहे हैं इसका कहाँ है डॉक्यूमेंटेशन, कहाँ है? होनी चाहिए यकीनी तौर पर। यहाँ से जागे वहीं से सवेरा है, अगर आज भी जाग गए तो अब हर चीज़ को बहुत एहतियात से लेके चला जाएगा, तो फिर कहीं जाकर तब्दीली आएगी, और इस तब्दीली के लिए सख्त मेहनत शाखा की ज़रूरत है। जितनी मेहनत की ज़रूरत आज है पहले कभी ना थी, क्योंकि बहुत से हिजाबात अब उड़ गए, बहुत से चेहरे आया हो गए, जो ताहिदारी की बुनियाद पर निज़ाम चला रहे थे, मालूम हो गया कि इनका हक़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हक़ से ताल्लुक़ उसी का होगा जो अपने वक्त को हक़ के लिए वक्त कर दे। कोई सवाल? बात अब आ गए उसकी निगरानी से नहीं है, आपसे मेरे बारे में नहीं पूछा जाएगा। आपके अकाउंट में जो आपके पर्टिकुलरिटी के अकाउंट की रिपोर्ट है उसमें कहीं भी सवाल नहीं होगा डॉक्टर बुरहान शाहिद साहब, डॉक्टर बुरहान जो मामला बताइए होगा, आपसे तो आपके बारे में पूछा जाएगा। नहीं, माशरे इज़हार के लिए हम अपने ज़ात से शुरू करेंगे, अपना सुधार पहले है। इब्लीस लईन और नफ्स अम्मारा हमें ये सब दूसरों की गलतियाँ दिखाता है, जबकि बुनियादी तौर पर होना ये चाहिए कि अपने इस्लाह की फिक्र हमें पहले करनी है। जैसे ही करेंगे वलाकुल शैइन कदीर, ज़ात किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता, किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता। इतना मालूम हमारे 70 माओ से ज़्यादा मोहब्बत करता है अल्लाह के मंदिर का बड़ा यकबौर पैकी गुफ्तियार। पूरे कुरान में एक मकाम पर आया है जहाँ इब्राहिम को काबी की तामीर और सफाई का अल्लाह ताला ने इशारा किया, हुक्म दिया। एक मकाम पर भेज दिया है बैती कहते हैं मेरे घर को साफ करें, तब मेरा बैती का लफ्ज़ कुरान में इस्तेमाल हुआ पूरा बकरा। और एक मरतबा मौलवी फरमाते हैं क्या मौलाना के इल्म की वसअत का अंदाज़ा लगाएं कि एक मरतबा कुरान में बैती आया है, बैती से मतलब समझिए कि मेरा घर, और 70 मकामात पर आया है मेरे बंदे मेरे बंदे मेरे बंदे। तो क्या मौलाना ने बैठ के काउंटिंग की कि एक जगह अपना घर कह रहे हैं और 70 मरतबा या इबादी अल्लाह का सिवा अल्लाह के बंदे, अल्लाह के सालीन, अल्लाह की मोहब्बत करने वाले, अल्लाह के शोदा राय खुदा में शहीद होने वाले 70 मकामात पर, इसको दलील बनाकर मौलाना फरमाते हैं कावरा यकबौर बैती गुफ्तियार गुफ्तिया आगदी मरो हस्कौर बार, ए मेरे बंदे ए मेरे बंदे ए मेरे बंदे 70 मरतबा कुरान में कहा। और हमारी रगे जान से नालू आकर मिले मिन हाबलिन वरीद, हम तुम्हारे लगे जान से ज़्यादा नसीब है। तो सवाल यहाँ पे आपका ये है कि हम दूसरों को सही करने की फिक्र छोड़कर अपनी इस्लाह की फिक्र करें। सबसे पहला मसला है जब हम अपनी इस्लाह की फिक्र करेंगे तो वो ज़ात जो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करती है उसी में से गुल बूटे निकल आएंगे। और अगर हम इतने बड़े मामले प्रोजेक्ट में लग जाएंगे और अपनी इस्लाह की फिक्र छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा कि महशर में गए शेख तो अमाल नदारत और जिस माल के ताजिर थे वही माल नदारत, तिजारत करते रहे फैलाने के दीन को और अपने आप को भूल गए। भला तक़ूलू फलन तफ़अलू, मत कहो वो बात जो तुम करते नहीं।
मत करो बात, वला तक़ूलू मत कहो, फलन तफ़अलू जो तुम नहीं करते। हम में से मामला माशरे का ही हो गया है कि हर शख्स दूसरों की गलतियाँ और तरकीब तो करता है, अपनी ज़ात की इस्लाह करने की फिक्र नहीं। ये अहलुल्लाह का ख़ुसूसी वक़्फ़ व इनाम व एहतराम है कि उनकी सोहबत के नतीजे में ये बस जाग जाता है कि इस्लाह पहले अपनी करें। दीन हम बाहर फैलाते हैं, और बड़े बड़े दीनदार लोगों को देखा गया कि जो बाहर दीन फैलाते हैं, उनकी फैमिली से जब मुलाकात हुई तो उनके अंदाज से अंदाज़ अच्छा चाहिए, दो रुखापन है, दीन दूसरों के लिए और अपनी ज़ात पे हम लागू नहीं कर रहे। पहले तो दीन मेरे घर से शुरू होगा, मेरी ज़ात पर होगा, मेरे फैमिली मेम्बर पर होगा, कि जिनसे मैं डेली मिलता हूँ उनसे वो पर होगा, फिर बात आगे बढ़ेगी। मैं कहूँ नहीं, मैं तो बस बिल्कुल मन आनम के मन दानिम तो मन की मंजिल पर हूँ, उससे बेहतर कोई हो नहीं सकता। हाँ तो बड़ा पेड़ा कहते हैं पंजाबी में, बड़ा कौन, तो उससे बड़ा कौन हो सकता है? मतलब सारा धोखा है। बेहतर ये है कि माशरे, क्या नबी साहब की ज़माने से बुरा माशरा इस वक्त है? काबे का तवाफ ख़वातीन बरहना होकर रात को करती थी, रात को तालियाँ बजाती थी, सीटियाँ बजाती थी, है ना। और खलील हक़ इब्राहीम के वही जरफ़अ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल, काबे की तामीर अल्लाह ने अपने दोस्त से करवाई, उसको 360 बुत जमा कर दिए लोगों ने, 360 बुत जमा कर दिए उस काबतुल्लाह की इमारत के अंदर। वो माशरा फिर कैसा होगा? अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसे सिविलाइज माशरे में आपने ऐलान नबूवत किया होता तो बहुत से मुँह फट ये कहने जैसे हो जाते, अरे साहब बहुत बड़ा काम किया, सारे सिविलाइज थे। वहाँ तो जहल की कैफियत थी, बेटी को ले जाते थे, रेत में जगह बनाकर बच्ची को लिटा के बंद करके आ जाते थे। हाँ? घरों पे झंडे लगे हुए थे, जो लोग रात यहाँ गुजारना चाहें वो गुजार सकते हैं। कौन सी ऐसी बुराई नहीं थी जो उस माशरे में? उसी माशरे में अल्लाह के नबी ने ऐलान नबूवत से पहले अपने आप को सादिक और अमीन कहता है। उसी माशरे में पहले कैरेक्टर पेश किया, अपना कैरेक्टर पेश किया। यानी बदतरीन मुखालिफ भी तिजारत के लिए शाम और बासरा जाते तो अपना मालो मता और अहलो अयाल को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किफालत में लेके जाते कि पूरे मक्के में दूसरा बंदा कोई नहीं है, ये करेंगे हिफाजत। ये कैरेक्टर है ना, ये कैरेक्टर है। इसके बाद फिर ऐलान नबूवत है, तो फिर हुआ क्या? सब हिजाबात दिल बासूरी दीदाशुद, सैकड़ों हिजाबात आँखों के रास्ते दिल में पड़ गए, और क्यों गरज आमद हुनर पोशीदा शुद, जैसे गरजाई हुनर छुप गया, जैसे ऐलान नबूवत किया। होना तो ये चाहिए था कि पूरे माशरे को ऐसी मिसाल पेश की, सादिक और अमीन कहलाने या कहलाने जैसे हो गए, मगर जब जैसे ही उनकी बुराइयाँ उनको दिखाई गई सारे मुखालिफ हो गए, बदतरीन मुखालिफ, यहाँ तक कि हिजरत करनी पड़ गई। अल्लाह ने हिजरत का हुक्म दिया क्योंकि तलवारें पेश करके खड़े थे। पूरी हयात मुबारक आका सलाम की हमारे लिए आपका उसवा हसना हमारे लिए मशअल राह है। अगर हम में से कोई कामयाब होना चाहता है, किसी भी एक ज़ाविये को पकड़ और चलता चला जाए, अल्लाह अपने हबीब के सर से मेरा रास्ते खोल तो माशरे का शिकवा करना चाहेगा, किसी तरह से मुनाफिक नहीं है। और क्योंकि हमसे किसी के बारे में नहीं पूछा जाएगा, हमसे ये पूछा जाएगा दादा अपनी फाइल बताइए कहाँ है, आपकी फाइल में क्या है। तो फिर पता कोई चला कि मैशर में गए शहर तो अमाल नदारत, और जो सारा ज़िंदगी इस चक्कर में लगे रहे, पता लगे वहाँ अमाल नहीं पहुँचे। अमाल किनके पहुँचे? कपड़ा बेचते थे, जो साहब आए थे, मैं इतना कर देता हूँ, जो साहब आके बैठे मिलने के नाम सुन के बहुत बड़ा, तो बहुत देखा बहुत देर में कपड़ा बेच रहे हैं, तवज्जो नहीं की। तो एक शेर मौजूद किया फारसी में दिल से, न मर्दस के दुनिया दो तारा, मर्द नहीं है दुनिया को दो सकता है, कह के चले गए। और फिर जाकर मस्जिद में देख गए तो आप लगे तो मंजर जो है देखा कि भाई मैशर है और वहाँ पे जान फंस गया है। अल्लाह के दोस्त ने इसी दोस्त ने आगे गर्दन छुड़ाई। जब वापिस आए जाग कर तो आगे ना पहचानने का वो करने लगे, तो मैंने पहचाने नहीं वहाँ कभी। तो उन दोनों ने कहा कि अच्छा वो शेर तो सुनाई जो आपने हमारे बारे में पढ़ा था, नमरदस के दुनिया दोस्त दारन। इनको ये मालूम हो गया दिल में पढ़ा था और ये इनके पास उनकी इन्फॉर्मेशन पहुँच गई। क्योंकि मोमिन जो है इत्तहा फरासतुल मोमिन, कि मोमिन की फरासत से डरो, ये वह अल्लाह के नूर से देखेगा। अल्लाह के नूर से कौन देखेगा? मोमिनाना शान वाला अल्लाह के नूर से देखेगा। अल्लाह उसे स्पेशल फ्रिक्वेंसी देगा। जैसे मोमिनाना शान पैदा होगी तो
इसकी देखने की सलाहियत क्या होगी? बस हमारे खत्ता मदीना मुनव्वरा में है और या सैकड़ों मील के फासले पे सारिया भी जबल देख रहे हैं, वो वहाँ सारिया जंग में है और पहाड़ के पीछे से जो है खतरा है, तो यहाँ बोल रहे हैं मेंबर पे, गुफ्तगू डिफरेंट हो गई है, लोग परेशान हैं कि उमर ने क्या दरमियान में बात कर दी, या सारिया भी जबल पहाड़ की तरफ देखो, किसी की हिम्मत ना हुई पूछने की। जब सारिया वापिस आए तो फरमाया ये जो ज़बान से जुमला अदा हुआ मैंने वहाँ सुना कि मोमिन की देखने की सलाहियत भी देख लीजिए और मोमिन के बोलने की सलाहियत भी देख लीजिए। मोमिन की ये भी देख लिया कि सारिया खतरे में, और अपनी आवाज़ को वहाँ तक खुदा ने उनकी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचा दी। क्यों? कि मोमिनाना शान का इनाम इकराम यही है, वो मोमिन की फरासत से डरने के लिए कहा गया है कि वो अल्लाह के नूर से देखता है, और जब नफली इबादतों के ज़रिए अल्लाह को राज़ी कर लेता है तो फिर क्या है, हदीस क़ुदसी में है कि अल्लाह आँख बन जाता है जिससे वो देखता है, अल्लाह ज़बान बन जाता है जिससे वो बोलता है। जब अल्लाह बोलता है फिर क्या बोलेगा? लोगों की गर्दनों को जहन्नम के फसादों से छुड़ाने के लिए बोलेगा। इसका क्या मकसद हो सकता है? और खैरुन्नास में यनफ़उन्नास, बेहतरीन इंसान वो है जो इंसानों की खिदमत करता है। अल्लाह ने पैमाने मुतअय्यन कर दिए हैं, सिर्फ इस जानिब अमलियत पसंदी की कमी है। मैं समझता हूँ ये भी नफ्स की और शैतान की चालों में से चाल है कि हमें अपनी तरबियत से, अपनी इस्लाह से हटाकर गैर ज़रूरी तौर पर दूसरे लोगों की पर तनकीद का दाविया है। तनकीद तो किसी भी तरह, अक्ल को तनकीद से फुर्सत कहाँ, अक्ल को तनकीद से फुर्सत कहाँ, इश्क पर आमाल की बुनियाद पर। जैसे इश्क पैदा होगा तनकीद खत्म हो जाएगी। जैसे अक्ल की अगली मंजिल क्या है? इश्क है। अक्ल जो है निचले दर्जे की, अक्ल रोटी कमाने, घर बनाने, माल जमा करने, मुकाम व मर्तबे के लिए अपने आप को हर वक्त मसरूफ़ रखने का नाम है। ये अक्ल ये सारे काम करती है। मगर अक्ल को अगर पॉजिटिव यूज़ किया जाए तो इरफान की मंजिल इससे में आती है, अल्लाह की पहचान की मंजिल उसके हिस्से में आती है, क्योंकि वो इश्क की बुनियाद पर होता है। नौकरी करने वाले 8 घंटे 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं, वही कारखाना है और वहाँ पे लोग सब 8 घंटे ड्यूटी कर चले जाते हैं। रात को किसी वक्त लेट आवर में मालिक अपने फैमिली के साथ आ गया तो एक बंदा लगा हुआ है वो सफाई सुथराई में, तो तक गए नहीं कि मैंने देखा कुछ काम निकला बस मैं करके जाऊँगा, तो उसके दिल में, उस मालिक के दिल में उस बंदे के बारे में क्या ख्याल रहता होगा? अच्छा, मेरे ना जानने के बावजूद ये मेहनत करता नजर आ रहा है। तो नफली इबादत यही है कि हम पंचवक्ता की इस कैफियत पे जो बंधे हुए हैं और हम उससे बहुत ज़बरदस्त किस्म का हम तकिया किए बैठे हैं, उससे निकल कर अमूमी तौर पर अपने खुदा की खिदमत को शार बनाया जाए, अमूमी तौर पर, अनकंडीशनल होकर, बिल्कुल कोई कंडीशन। देखिए मैं समझता हूँ इसमें जो लोग बैठे हुए हैं बेशतर वो हैं जो ब्लड रिलेटेड नहीं है मगर फिक्री तौर पर साथ हैं। बाद औक़ात खूनी रिश्ता अदना होकर रह जाता है, फिक्री रिश्ता बढ़ जाता है। सारे शिदार हैं मक्का मुकर्रमा में, सब खूनी रिश्ते के लोग हैं, मगर अदावत कैसी रखी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और बिलाल हबशी हबशा से आगे मुसलमान, मेरी जान फिदा, सलमान फारसी ईरान से आगे मुसलमान हो रहे हैं, सोहेब रूमी रोम से आगे मुसलमान हो रहे हैं कि उन्होंने पहली नज़र में देख लिया कि अच्छा अच्छा ये मामला है। और यहाँ जो जिन्होंने बचपन देखा, जवानी देखी, अखलास देखा, अमल देखा और सादिक और अमीन का दर्जा मिला, वो पहचानने से हासिल हैं, क्योंकि अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अब्सारिहिम ग़िशावतुन व लहुम अज़ाबुन अलीम। ये अल्लाह का फरमान है। तो ये अल्लाह से क्या मांगी जाए? अल्लाह से तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा मांगा जाए, अल्लाह की रहमत और बरकतों का हर वक्त तक़ाज़ा किया जाए। तक़ाज़ा करने में कमी ना करें, इसलिए ना करें कि वो तो उसके पास क्या कमी है, कमी से एंड पर है उसको पहचानने के हवाले से। जैसे उसकी पहचान बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारा क़ल्ब मुसफ़्फ़ा होता जाता है, मुझे अल्लाह होता जाता है, उसकी कैफियत में आ जाते हैं, रब से ताल्लुक़ की कैफियत। बेज़ाब्ता ही मगर गुफ्तगू अच्छी खासी हो गई, बड़े शौक़ से सुन रहा था ज़माना, हम ही सो गए दास्तां जैसे जैसे नहीं कहिए कुछ और होगा। और कहिए ये जनाब हाँ बेटा
अभी जो आज बयान में गलूर साहब थे आज हमारे साथ, आज की महफिल में थे, तो इत्तेफाक है कि महफिल जो है वो बारिश की वजह से ऐसा माहौल बन गया कि हम सब करते में 2 महीने से मैं बैठा हूँ, गर्मी गर्मी गर्मी, रहती बारान रहमत ज़बरदस्त पसंद की, तो बस शुक्राना अदा करें। बहलूल दाना गुफ्तगू करने की बात और कई बार बयान भी किया। बहलूल दाना नबाती दौर में एक आरिफ बिल्लाह शख्सियत हुई है। आरिफ बिल्लाह हारून रशीद ने 3 शख्सियात को तलब किया और उन्हें चीफ जस्टिस बनाने की बात की। उसमें से बहलूल भी थे। 2 शख्सियात और जब वो उसने कहा कि मैं आपको खादिम करता चीफ जस्टिस बनाना चाहता हूँ, तो 1 साल जो थे वो वहाँ से दरबार से वक्त निकल निकले और वो शहर छोड़ कर गए। बहलूल दाना ने ये किया कि घर आए और लकड़ी का घोड़ा बनाकर उस पर बैठ के घर से बरामद किए, बच्चों के साथ जाके मैदान में खेलने लगे। तो बात क्लियर हो गई साहब, इनका दिमागी तवाज़ुन जो है वो इस तरह से बहलूल दाना उससे बच गए इम्तहान से। जो अब्बासी दौर में जो तीसरे साहब थे उन्होंने वो ओहदा कबूल किया और बहुत बाद में मसाइल पैदा हुए पर तफसील है। तो बहलूल दाना इस तरह से अपने आप को उन्होंने छुपा लिया। इस चीज़ का जुनून या जो मैं पागलपन का इस्तेमाल करने जा रहा होता है, मजनू हो गए, मजनू। हाँ, ज़ाहिर है जो भी अल्फाज की मंजिल पर आता जाएगा वो नबी के खानवादे को पहचानता जाएगा। नबी के खानवादे को पहचानने के लिए ईमान का आला दर्जा है, बहुत ज़रूरी है। अगर मैं कुरान के हवाले देने लगूँगा तो ला असअलकुम इलैहि अजरन इल्ला मवद्दत बिल क़ुरबा, आप फरमा दीजिए इनसे, आपके जितने उम्मती हैं इनसे कह के फरमा दीजिए कि ला असअलकुम, मैं कोई सवाल तुमसे नहीं कर रहा, मैं तुमसे कुछ भी नहीं मांग रहा, मैं तो देने के लिए आया हूँ। तो अब तुमसे सिर्फ एक सवाल है कि मेरे क़राबतदारों से मोहब्बत करना। कुरान का मतलब किससे मोहब्बत करना, यही मैसेज है। क़राबतदारों से मुराद अहले बैत अतहार, अहले बैत अतहार से मुराद वो 5 नफूस जो सूरह आले इमरान के मौजिब आया मुबाहला के लिए निकले बाहर। बहुत लंबी तफसील है, तो मौका आएगा इंशाअल्लाह बात करेंगे। तो बहलूल भी अहले दाना की अहले बैत अतहार की मोहब्बत में दाना ये थे कि उसी पागल करने ऐसे ऐसे जवाब देते थे कि लोग हैरान हो जाते। कहते मशहूर पागल है, और कोई सवाल करता तो हैरान करने के जवाब देते। दरिया किनारे वहाँ एक नहर बनाई थी मरकज़ ज़ुबैदा ने, उसी के नाम से मशहूर थी, तो बहुत अच्छा माहौल था वहाँ का। उसी नहर के किनारे बैठ कर ये मिट्टी के खिलौने बना रहे थे। तो कभी कभी ज़ुबैदा हारून रशीद की सहेलियाँ आती थी अपने नहर के विजिट के लिए सहेलियों के साथ। तो दाना ये तो मशहूर हो गए थे, मजनू हो गए, दीवाने हो गए, दीवाने हो गए। तो बैठे मट्टी के खिलौने बना रहे थे, जन्नत में घर ले लो, जन्नत में घर ले लो। तो बता सुनो कि भाई जन्नत में घर यहाँ मट्टी के बना के बेच रहा था, क्या हो गया? तो चला समझदार आदमी कि जन्नत में घर ले लो। ज़ुबैदा गई अपनी सहेलियों के साथ, कहा कि बहलूल क्या कर रहा हो, तो जन्नत में घर बेच रहा है। तो कितने का है? 5 दिनार का है, 5 दिनार का जन्नत में घर बेच रहा है। तो वो 5 दिनार देकर वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया। अब हारून रशीद रात को ख्वाब में उसने देखा कि वो जन्नत पहुंच गया और बहुत आलीशान एक रोशनियों से जगमगाता हुआ महल है और बहुत ही शानदार तामीर है उसकी, रोशन है बिल्कुल। और उसकी तख्ती जो लगी है वो मलका ज़ुबैदा के नाम लगी। ये मैंने कि ज़ुबैदा महल, उसको बड़ी हैरत हुई कि तुम ये बताया नहीं जन्नत में महल ले लिया। जब जागा सुबह तो पूछा तुमने जन्नत में महल लिया? तो हंसी वो कहने लगे वो कल बहलूल बैठा हुआ वो बेच रहा था, 5 दिनार का दिया था, मैंने ले लिया था। तो वो तो मैंने देखा है, तो बहुत ही आलीशान महल तुम्हारा जन्नत में बना हुआ, नाम लगा तभी लगी। अच्छा, तो इसको शौक हुआ, भागा गया, वो जन्नत में घर बना के बेच रहे हैं। जैसे ये गया और रशीद तो पूछा बहलूल क्या कर रहे हो? जन्नत में घर बेच रहा हूँ। कितने का बेच रहे हो? तो उसकी पूरी सल्तनत की जो कीमत थी वो बताई।
पूरी सल्तनत की, बगदाद की सल्तनत की कीमत थी करोड़ों रियाल दीनार और रियाल ज़माने के। बोले बताए तुम भी क्या बात कर रहे हो, कर दो, तुमने 5 दिनार के दिया था उसको जुबैदा को, कह रहे हो तुम बगैर देखे दिया था, तुम देख के लेने के लिए आए हो, उसने बगैर देखे सौदा कर लिया था, तो बगैर देखे का सौदा वाद औकात बहुत अच्छा। हम लोग अकल हमें कहाँ दौड़ाती है, और चुनाव और चुनी में लग जाते हैं, नफ़ा और नुकसान की झंझटों में। उससे ताल्लुक जुड़ जाए तो फिर नुकसान है, तो नुकसान नहीं है। बस वो शैतान का मिशन क्या है कि इनको उनसे जुड़ने नहीं देना है, और आपका मिशन ये है कि आपने तमाम रुकावटों को अबूर करके उस तक पहुँचना है। और यही मकसद हयात और ज़िंदगी का मिशन होना चाहिए कि हम तमाम तर रुकावटों, तमाम तर रंजिशों, तमाम तर दिलादारियों, तमाम तर हालात की परेशानियों के बावजूद अपनी कौस से जुड़े रहें, अपने उस मकसद से। क्योंकि कुरान का मजमून ये है कि सुम्मस्तकामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, मलाइका का नुज़ूल मशरूत है इस्तिकामत से। मलाइका का नुज़ूल, मलाइका नज़र नहीं आती, नज़र क्या चीज़ आती है, नज़र असबाब नज़र आती है। साहब फला साहब निकलते हैं, उनके सारे काम ऐसे फटफट गड़पट होते चले जाते हैं। यहाँ से नॉर्थ कराची निकले तो सारे सिग्नल टावर तक खुले हुए मिल रहे हैं, और जो कोई जाके नाके करूँगी भर गया बेचारे, वहीं से आगे नहीं बढ़ रही गाड़ी। तो कोई तो बात होगी कि उनके सिग्नल सारे खुले हुए मिलते हैं और उनके सिग्नल सारे बंद मिलते हैं। इसलिए मिलते हैं कि अल्लाह असबाब को उसके ताबे कर देता है, किस बुनियाद पर, इस्तिकामत की बुनियाद पर। सुम्मस्तकामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइक, तुम इस्तिकामत दिखाओ, अल्लाह मलाइका का नज़ुल करेगा। जो लतीफ़ किरदार होते हैं, आरिफ बिल्लाह होते हैं, वो रिजालुल गैब और मलाइका को भी देख लेते हैं, मगर जो कसीब होते हैं उनके हिस्से में सादत नहीं आती है। जब नहीं देखते तो क्या दिखाता है, असबाब दिखाता है उनको। और जैसे जैसे तरबियत पुख्ता होती जाती है, आँखें यही आँख तो बैल के पास भी है, लशन भी बड़े बड़े हैं और उसकी आंखें भी बड़ी बड़ी हैं, हमारे पास भी आंखें हैं, उसके पास भी आंखें हैं। इन दो आंखों को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? वो करना बनी आदमा, जो कुरान का मजमून है कि अल्लाह ने औलाद आदम को फजीलत दी, फजीलत दिखाएं कहाँ है वो फजीलत? फजीलत कैरेक्टर के बाद बनती है। तो ये आँख और ढेला यही होता है, मगर देखने की ताकत जो है मदीना से ले के या सार या फिर जबल तक पैदा होता है। खड़े यहाँ हैं, खड़े यहाँ हैं, मगर नजरें कहाँ तक हैं? अल्लाह की बात है, क्योंकि अम्बिया का वस्फ है भाई। सफ़र में है सलाम 3 मील के फासले पर, 3 कोस के फासले पर चूटियों में से एक चूटी कहती है, चूटियों जल्दी जल्दी बिल पे घुस जाओ, सलमान का लश्कर आ रहा है, कहीं वो दबा ना दे, फिसल ना दे। सलाम इस चूटी की बात को 3 मील 3 कोस के फासले से सुनते हैं और मुस्कुराते हैं। जदीद दौर के तमाम साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के बावजूद अगर आप ज़्यादा ज़्यादा ये कर सकते हैं कि चूटियों की सरसराहट या छोटे जानवर सुन सकते हैं, वो कह क्या रही है, वो कह क्या रही है चूटी, ये समझना तो हमा शुमा की बस की बात है। हाँ ठीक है, आप तरक्की करके कर ले, मगर जो छुपा हुआ नुक्ता ये है कि सलमान ना सिर्फ आवाज़ सुन रहे हैं बल्कि उसकी गुफ्तगू को समझ रहे हैं, और फिर मुस्कुराहट आपके चेहरे पर है कि नबी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जब नबी के लिए बड़ी बात नहीं है तो नबियों से मोहब्बत और इश्क, बच्चा तैयार है सब कुर्बानी करने के लिए, है ना यार। भाई कुछ सारा साल प्रोजेक्ट चलता है, बताता है कि भाई तुम बाहर बच्चा बाप से कहता है, मिल के कहते हैं अब्बा गाय लाइए, अब्बा बकरा लाइए, कौन सी मोहब्बत है ये? वो मोहब्बत है जो इब्राहीम ने करके निकाली। इब्राहीम ने छुरी पकड़ ली, बेटा भी कैसा, अल्लाह गनी अल्लाह है। इस दौर में ऐसे मॉडल के बेटे नहीं, किसी फैमिली में है ऐसे बेटे जो गया, बेटा मैंने आपने देखा है तुम्हारी सबसे छोटी उंगली का सबसे छोटा थोड़ा काटूंगा, तो वो तो बेचारा कुछ नहीं बोलेगा, ननियाली और ददियाली पतावा करेंगे घर। और तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, तुम बच्चे की उंगली काटोगे तो कहाँ गया ईमान हमारा? तो बच्चे से पूछा, बेटा मैंने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा है, ऑर्डर नहीं है, लेकिन ऑर्डर नहीं है, तो कोई कहीं नहीं आई है, फरिश्ता नहीं आया है, जस्ट झिलमिल सा ख्वाब है, और फिदा होने वाले सिर्फ ख्वाब पे फिदा हो रहे हैं, और यहाँ हकीकतों का इनकार कर रहे हैं, फिदा होने वाले ख्वाब पर कुर्बान हो रहे हैं।
तो अल्लाह को हिदायत इतनी पसंद आई कि जब से लेकर अब तक और अब से लेकर क़यामत तक करोड़ों करोड़ों अरबों मखलूक अदना मखलूक कुर्बान की जा रही है इस अदा पर जो इब्राहिम ने और इस्माइल ने कही। और खुद ब खुद हो रहा है, ये खुद ब खुद हो रहा है। हर बच्चे के दिल में, हर घर में औरतों कुछ भी करो, कम्युनिटी डालो, कुछ करो, कुर्बानी जरूर करो। ये कौन सा वस्त है? ये क्या अल्लाह का इनाम है? एक उल्फत में तुम हमारे हो, बाकी जो भी है सब तुम्हारा है। एक उल्फत में तुम हमारे हो, जो भी है सब तुम्हारे लिए से बनाया। हाँ, मोहब्बत में दुई मत करना, हमसे हमारे साथ मामला करते हुए एहतियात करना, उसको मिक्स मत करना, उसको प्योर रखना, किसकी तरह? अंबिया की तरह, अहलुल्लाह की तरह रखोगे तो फिर नताइज आएंगे जो अल्लाह की जानिब से मोमिन के लिए खुसूसी इनाम है। इस खानका की तारीफ का बुनियादी मकसद ही यही है। गुज़श्ता 20 साल से जो मैं मसरूफ़ अमल रहा शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में, और ये मिशन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की फजल की वजह से इस्तक़ामत से जारी रहा, और आते आते हम इस मुकाम तक आ गए। अब एक और मिशन है कि ऐसे नौजवान तैयार किए जाएँ, चिराग से जब चिराग जलता है तो जिस मोमबत्ती की दूसरी मोमबत्ती जलती है उस मोमबत्ती में कमी नहीं आती रोशनी में, बल्कि माहौल रोशन हो जाता है। तो चिराग से चिराग जलता जाए और माहौल में रोशनी बढ़ती जाए। इखलास अमल और इखलास नियत की बड़ी इंपॉर्टेंस है। खुदा इसको बड़ी अहमियत देता है। हमसे सिर्फ ये तकाज़ा करता है कि इस्तक़ामत दिखाएँ, हमसे सिर्फ ये तकाज़ा करता है कि प्योरिटी दिखाएँ। अगली मंजिलों में हमारे लिए आसानी पैदा करें। इस दूर दराज मुकाम खानका की तामीर के अल्लाह का इनाम इकराम नहीं है। हम इतने बेफिक्री से यहाँ तमाम फैसिलिटीज़ को इन्जॉय कर रहे हैं, यहाँ लाइट भी है, यहाँ पानी भी है, यहाँ फैसिलिटीज़ भी है, और इतना अच्छा मौसम बाहर है। ये सब क्या है? ये अल्लाह का इनाम है। उसका इनाम का शुक्राना दो तरह का होता है हमेशा। एक शुक्राना जो मसल्ले पर अदा किया जाता है, लफ्ज़ी कहलाता है। हमारे यहाँ मौलाना की तरबियत के बाद लफ्ज़ी शुक्राना भी है और साथ साथ अमली शुक्राना भी है। अमली शुक्राना क्या है? कि मखलूक खुदा के साथ हाजतमंदों की हाजत रवाई की कोशिश की जाए, इखलास अमल इखलास नियत के साथ अल्लाह के मखलूक के साथ मोहब्बत की जाए, और उनके मामलात में आसानी की न सिर्फ दुआ की जाए बल्कि कोशिश की जाए। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बात का ख्याल करिए। कई बच्चों में सवाल काफ़ी तो बेदाख्त बहुत मैं आज इस प्रोग्राम को उस तशख़ीस को जो 5 हफ्ते पहले की थी